back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is rights of Bailee. Guys, I've told you beforehand that we'll be covering four very important concepts in four different videos. I've already covered so far duties of a bailer and duties of a bailee. In this video, we are going to discuss rights of a bailee, and in my upcoming video, which is going to be very short, we'll be discussing rights of a bailer. So guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with rights of a bailee. Guys, we'll be covering four very important rights of a bailee. First and the foremost important right is that he has a right to necessary expenses on bailment. We'll be covering this right under section 158 of the Indian Contract Act. Then he has a right to claim compensation from the bailer, which we'll be covering under section 164 of the Indian Contract Act. Then we have a right of lien by the bailee, right, under section 170 of the Indian Contract Act. And then last but not the least is right to sue the wrongdoer, which is under section 180 and 181 of the Indian Contract Act. So guys, moving on with the first very important right of a bailee is that he has a right to claim necessary expenses on bailment. Guys, in order to understand section 158, you have to understand differentiation between two types of bailment, which I have already explained. हम already कर चुके हैं kinds of bailment में gratuitous and non-gratuitous contract of bailment. Guys, if you remember, non-gratuitous contract of bailment is a contract of bailment which is for reward, which is for consideration. यानी कि bailment for hire is called non-gratuitous contract of bailment, or in simple words, bailment which is not free of cost is termed as non-gratuitous contract of bailment. Guys, अब आपको पता है कि non-gratuitous contract of bailment जो होती है वहाँ पे some kind of remuneration is to be given. Understood है, suppose I have given my suit fabric to a tailor, it is understood that I have to pay him for services which he has rendered. उसने मेरे suit fabric को suit में stitch किया, इसीलिए I have to make some amount of money, some consideration for his services which he has rendered to me. So that is a non-gratuitous contract of bailment. Moreover, I have given you an example of a service station. If I have sent my car to a service station for repairing or for maintenance, what will happen? I have to make payment to them. So it is a non-gratuitous contract of bailment. Although I am the owner, I am still the owner, but I have given the possession of my car to the service agency for the time being for some specific purpose to be accomplished or for some specified time period. इसीलिए it is a contract of non-gratuitous contract of bailment. So guys, non-gratuitous contract of bailment में this term itself says that it is a bailment which is for consideration, something in return I have to make payment to them. So वो आपको पता ही है कि जहाँ पे non-gratuitous contract of bailment होगा वहाँ पे some kind of remuneration is always there. So वहाँ पे अगर मैं कहूँ कि I have a right to claim, तो वो कोई मतलब ही नहीं बनता. वो अंडरस्टूड है कि non-gratuitous contract of bailment is a bailment for consideration. So वहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि Bailee has a right to claim necessary expenses, क्योंकि वहाँ पे वो non-gratuitous है. It is non-gratuitous by virtue of its characteristic of being considered, having consideration. Are you just understanding कि वो non-gratuitous है ही इसीलिए क्योंकि उसमें consideration है, उसमें remuneration है, उसमें हायर है या फिर उसमें रिवॉर्ड है. सो यहाँ पे जब हम सेक्शन 158 की बात करते हैं तो 158 सेक्शन क्लियरली बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके की हैं वेयर समथिंग इज टू बी डन बाय द बेली फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर वेयर नो रेम्यूनरेशन इज टू बी गिवन, वहाँ पे नो रेम्यूनरेशन इज टू बी गिवन, इट मीन्स इट इज अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. वहाँ पे जो आपका बेलर है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू मेक पेमेंट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस टू द बेली. क्योंकि ये बेलर की ड्यूटी है तो वो ऑटोमेटिकली बेली का क्या बन गया, राइट बन गया. आई होप आपको समझ आ रहा है गाइज कि सेक्शन 158 को समझने के लिए हमें डिफ्रेंसिएशन करनी होगी बिटवीन ग्रेटिशियस एंड नॉन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. नॉन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की बात नहीं की गई सेक्शन 158 में, क्योंकि सेक्शन 158 की वर्डिंग क्लियरली बोलती है कि whereby the terms and conditions of contract of bailment something is to be done by the bailee for the benefit of the bailer. Please guys note this point, I'll be explaining it in detail, where something is to be done by the bailee for the bailer for the benefit of the bailer, and bailee is to receive no remuneration. It means it is a gratuitous contract of bailment.
And we are not talking about non-gratuitous contract of bailment. And why are we not talking about non-gratuitous contract of bailment? क्योंकि non-gratuitous contract of bailment में तो already remuneration होती है, so वहाँ पे question of no remuneration नहीं आता. तो here we are excluding, section 158 excludes non-gratuitous contract of bailment. वो understood है. अगर non-gratuitous contract of bailment होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका राइट ऑफ लीन होगा. मैं आपको बताऊंगी नॉन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता है गाइस, कि सपोज आई हैव गिवन माय सूट फैब्रिक टू यू फॉर स्टिचिंग, यू आर अ टेलर. अब वहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आपको पे नहीं करूंगी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अ बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड, आई हैव टू मेक पेमेंट टू यू. और अगर मैं आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट नहीं करूंगी, यू हैव अ राइट ऑफ लीन. आप मेरी प्रॉपर्टी को विदहोल्ड कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, आप मेरे सूट को तब तक अपने पास रख सकते हो जब तक मैं आपको पैसा नहीं दूंगी, आपकी ड्यू अमाउंट आपको नहीं दूंगी. आर यू जस्ट गेटिंग इट? सो इसीलिए इन सेक्शन 170 वी ओनली टॉक अबाउट non-gratuitous contract of bailment and in section 158 we only talk about gratuitous contract of bailment. राइट ऑफ लीन आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते इफ आई टॉक अबाउट ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम नॉन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करेंगे. एंड सेक्शन 158 में वी ओनली टॉक अबाउट ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड वी एक्सक्लूड नॉन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. उसका रीजन क्या है, क्योंकि सेक्शन 158 में क्लियरली लिखा है कि Bailee has done something for the benefit of the bailor and he has to receive no remuneration for his services. It means it is a clear-cut gratuitous contract of bailment. तो इसीलिए बेसिक एसेंस जो है सेक्शन 158 का क्रक्स बेसिकली ये है कि यहाँ पे बेली का राइट है और बेलर की ड्यूटी है. सेक्शन 158 की जो वर्डिंग है वो इस तरीके से है जहाँ से वो हमें बेलर का क्या बताते हैं, बेलर की ड्यूटी बताते हैं. अगर वो बेलर की ड्यूटी है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वो बेली का राइट हो जाएगा. इफ़ ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू मेक पेमेंट टू यू फॉर नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय यू एज अ बेली, देन इट इज़ योर राइट टू क्लेम दोज नेसेसरी एक्सपेंसेस. हेंस वी आर स्टडिंग इट हियर इन सेक्शन 158 अंडर राइट्स ऑफ अ बेली. सो आई विल बी गिविंग एन इलस्ट्रेशन फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल गाइज, आई हैव गिवन आई एम अ बेलर, मैंने अपनी काउ अपने नेबर्स को दी टू कीप इट इन सेफ कस्टडी. मैंने अपनी काउ उनको दी फॉर सेफ कस्टडी. नो दे आर व्हाट, दे आर बेलीज फॉर माई काउ. अब उन्होंने क्या किया, एक महीने के लिए आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, सो दे टुक ड्यू केयर ऑफ माई काउ. अब उन्होंने क्या किया, जब मैं एक महीने के बाद वापस आऊँगी, आई एम ड्यूटी बाउंड, मेरी ड्यूटी है दैट आई हैव टू मेक पेमेंट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस टू दोज पीपल. Although it is a gratuitous contract of bailment, मेरे benefit के लिए Bailee has done something, my neighbors have done something for the benefit of the bailor, for the benefit of the owner of that cow. मेरे लिए क्या किया, that they took care of my cow. As a gratuitous contract of bailment ये free of cost है, वो मुझसे कुछ भी claim नहीं कर सकते and I am also not obliged कि मैं उनको कुछ दूँ. बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 158 क्या बोलता है कि ये बेली का राइट बन जाता है और कहीं ना कहीं बेलर की ड्यूटी होती है कि आपको एटलीस्ट नेसेसरी एक्सपेंसेस देने हैं. एक्सपेंसेस वही देने विच आर नेसेसरी बट आपको देने हैं. इट मीन्स इन फीडिंग माई काउ फॉर अ मंथ लॉन्ग, एक पूरे महीने के लिए दे फेड माई काउ, उस चीज़ के लिए वो नेसेसरी एक्सपेंस है, उनका खर्चा हुआ, नेसेसरी हुआ. अगर मैं कहीं बाहर अपनी काउ को रख के जाती तो मेरा ज़्यादा खर्चा होता. नो दे गेव अ शेल्टर टू माई काउ फॉर अ मंथ, उस चीज़ का पैसा मैं उनको नहीं दूंगी, ना वो मुझसे क्लेम कर सकते बिकॉज वो नेसेसरी एक्सपेंस नहीं है. बट एटलीस्ट नेसेसरी एक्सपेंस क्या होगा, जो मेरी काउ को फीड किया उन्होंने एक महीना, वो तो उनका एक नेसेसरी एक्सपेंस है एंड आई एम ड्यूटी बाउंड दैट आई हैव टू मेक पेमेंट to them for this necessary expense at least, and it is their right according to section 158 as a Bailee that they can claim the same from me. So I hope you're getting it guys. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखा कि I as a Bailee, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेबर्स के एग्जाम्पल को याद रखो, काउ कस्टडी के एग्जाम्पल को याद रखो. हम क्या स्टडी करते हैं कि I have a right as a Bailee to claim necessary expenses from the bailor, but only those expenses which are necessary. Necessary expenses मैं claim कर सकती हूँ, ये मेरा right है as a Bailee. और bailor का क्या है, एक duty है, his duty bound according to section 158, but only in case if it is a gratuitous contract of bailment. Non-gratuitous contract of bailment में तो understood है कि आपको पैसा मिलेगा, आपने मेरा सूट स्टिच किया या आपने मेरी कार को रिपेयर करी, बाय वर्च्यू ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बीइंग नॉन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वो अंडरस्टूड है कि आपको पैसा मिलेगा. नहीं मिलेगा, यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ लीन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ फ्यू मिनट्स. आई होप आपको समझ आ चुका है. लेकिन एक वर्ड पे मैंने फोकस और भी किया था गाइज, दैट समथिंग इज डन बाय द बेली
फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर। यानी कि सेक्शन 158 ये बोलता है कि अगर बेली ने कुछ ऐसा किया है विच इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर, तभी वो क्या कर सकता है, नेसेसरी एक्सपेंस को क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, आई हैव bailed, I am a Bailee and I have bailed my car to you। मैंने आपको अपनी कार दी for a day, for 4 days, 4 to 5 days मैंने अपनी कार आपको दी। अब आपको क्या है, 4 to 5 days में आप इतनी दूर मेरी कार लेके जा रहे हो, आपको डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। अब गाइज ये एक नेसेसरी एक्सपेंस है, एक तरीके से ये एक नेसेसरी एक्सपेंस है जो आपको करना पड़ा। इफ़ यू हैव टेकन माई कार, आपको एक नेसेसरी एक्सपेंस इनकर करना पड़ेगा और वो ये होगा कि आपको उसमें डीजल या पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। दिस इज अंडरस्टूड, बट इज इट समथिंग फॉर माई बेनिफिट? नो, इट इज समथिंग विच यू आर डूइंग फॉर योर बेनिफिट। तो ये एक इंपॉर्टेंस है सेक्शन 158 की। वो क्लियरली बोलता है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, सबसे पहला तो नेसेसरी एक्सपेंस होना ज़रूरी है, एक्सपेंसेस मस्ट बी नेसेसरी इनफ। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इट शुड बी अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बिकॉज नॉन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज आउट ऑफ स्कोप, वो बिल्कुल बाहर है, वो अंडरस्टूड है। इट शुड बी अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वेयर नो रेम्यूनरेशन इज टू बी गिवन by the bailor to the bailee, first and the foremost thing. Second important thing is that something is to be done by the bailee for the benefit of the bailor। जैसे कि बेली ने क्या किया था, मेरी काऊ को कस्टडी में रखा, उसने क्या किया था, मेरे लिए, मेरे बेनिफिट के लिए कुछ किया, इसीलिए आई एम ड्यूटी बाउंड एंड ही हैज़ अ लीगल राइट एज अ बेली दैट ही कैन क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस फ्रॉम मी। बट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर ओन बेनिफिट, चाहे वो नेसेसरी एक्सपेंस ही क्यों ना हो, वहाँ पे आप मुझसे क्लेम नहीं कर सकते। अब कार को आप घूमने लेके जा रहे हो अलॉन्ग विद यू फॉर 4 to 5 days ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, राइट, अगर उसको डीजल या पेट्रोल भरवाने की जरूरत पड़ती है, वो एक नेसेसरी एक्सपेंस है, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ डन बाय द बेली फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर। Instead, I have taken that car for my own benefit. Are you just getting it? And if you remember, and if you have watched my video on kinds of bailment, वहाँ पे मैंने आपको अलग तरीके से बताया था, 3 हमने, I have made 3 separate points here, और मैंने आपको बताया था कि gratuitous contract of bailment 2 तरीके का होता है, it is for the benefit of the bailor or for the benefit of the bailee, and non-gratuitous contract of bailment is for the mutual benefit of both the people। तो यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट ऑफ बेनिफिशियरी स्टडी करते हैं। अगर तो सेक्शन 158 के अकॉर्डिंग बेलर इज द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी अगर बेलर है तो वहाँ पे यू कैन क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस फ्रॉम द बेलर। बट अगर यहाँ पे बेनिफिशियरी आप हो, फॉर एग्जाम्पल कार की एग्जाम्पल में, वहाँ पे यू कैन नॉट क्लेम नेसेसरी एक्सपेंस, ऑल्दो वो नेसेसरी एक्सपेंस है बट आप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 158 इसकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग समथिंग इज टू बी डन बाय द बेली फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर। सो आपको समझ आए कि यहाँ पे इट शुड बी अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बट ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी 2 तरीके का था। इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच। वो वीडियो इस पर्टिकुलर वीडियो का बेसिस है, प्लीज गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन काइंड्स ऑफ बेलमेंट। वहाँ पे आपको समझ आएगा। आई टोल्ड यू, मैंने यहाँ पे लिखा था बेलर, यहाँ पे लिखा था बेली, and there I have written gratuitous and non-gratuitous। मैंने इस तरीके से समझाया था कि gratuitous contract of bailment can either be for the benefit of bailor or for the benefit of bailee, and non-gratuitous contract of bailment is always for the mutual benefit of both the people। लेकिन सेक्शन 158 की अगर मैं क्रक्स बताऊं तो सेक्शन 158 तभी एप्लीकेबल होगा इफ इट इज़ अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर अलोन एंड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली हिमसेल्फ। अगर वो मेरे बेनिफिट के लिए होगा तो वो नेसेसरी एक्सपेंस मुझे ही इनकर करना होगा, वो फिर सामने वाला मुझे नहीं देगा। आई हैव नो लीगल राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंस देन। आर यू जस्ट गेटिंग इट? I hope section 158 is quite clear to you guys, and differentiation between gratuitous and non-gratuitous contract of bailment. Talking about second important right of a bailee, which in turn is the duty of a bailor, is right to claim compensation. Bailee has a right to claim compensation. Guys, more often than not what happens is, I've told you that who can bail. If you can question this answer, I've told you in the very first video itself that only the owner is entitled to make bailment. यानी कि a contract of bailment can only be entered by the true owner of a particular good with the other person. True owner bailor बन जाएगा, सामने वाला bailey बन जाएगा. But guys, what happens is, if by chance what happens is a person has a defective title, right? I have a defective title, I am not entitled, lawfully entitled to bail goods. But despite that, knowing that fact, मैंने क्या किया, bailment कर दिया. अब आपको उस चीज़ का नहीं पता था. As a result of my ignorance, as a result of my defective title, I was not legally entitled to make bailment, but still मैंने bailment कर दी. As a result, you have sustained some
डैमेजेस और सम काइंड ऑफ इंजरी, तो वहाँ पे क्या होगा, यू हैव अ राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम मी। बेलर इज ड्यूटी बाउंड कि उसको कॉम्पेंसेट करना है और बेली का राइट है कि वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 164 क्लियरली बेसिकली बोलता है कि इफ some injury or some loss or any kind of damage is sustained by the bailee just because bailer was not legally entitled to bail those goods or to receive those goods back or to give any directions respecting those goods, आप legally entitled नहीं थे कि आप bailment करो या उन गुड्स को आप वापस से रिटर्न ले लो या आप ये बोल दो कि आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दो, यू वर नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू गिव डायरेक्शंस रिस्पेक्टिंग दोज गुड्स। डिस्पाइट दैट फैक्ट आपने क्या किया, बेलर के साथ, बेली के साथ एक तरीके से फ्रॉड किया, तो वहाँ पे अगर उस कारण बेली का कोई भी नुकसान होता है तो बेली इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम यू। अब नुकसान किस तरीके का होगा, बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल गाइज, आई डू नॉट फॉरगेट कि यहाँ पे मेरा एक डिफेक्टिव टाइटल था, आई वॉज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू मेक बेलमेंट। अगर मेरा डिफेक्टिव टाइटल था इट मीन्स कोई तो उसका ट्रू ऑनर होगा। इफ वॉट हैपन्स इज वो चीज़ मैंने आगे बेल कर दी, मेरे पास पड़ी थी, आई माइट बी अ फाइंडर ऑफ सर्टन गुड्स, वो मुझे एक डायमंड रिंग मिली, अब क्योंकि वो मुझे मिली मैं क्या बन गई, एक बेली बन गई। आई हैव नॉट बिकम अ बेलर, आई एम अ फाइंडर ऑफ अ सर्टन गुड, बाय वर्च्यू ऑफ दैट आई हैव बिकम अ बेली। इनवॉलंटरी बेलमेंट इफ यू रिमेंबर, मैं बेली बन गई, मैं बेलर नहीं हूँ। अगर मैंने आगे किसी को बेलमेंट कर दी उसको हम सब बेलमेंट बोलते हैं। मैं बेली थी, मैंने किसी और बेली को आगे बेल कर दी, वो सब बेलमेंट हो गई, ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ। बट मैंने क्या किया, आई वॉज अ फाइंडर ऑफ अ डायमंड रिंग, मैंने आगे आपको दे दी। वन डे व्हाट हैपेंड इज ट्रू ऑनर ऑफ दैट रिंग केम टू नो कि वो चीज़ आपके पास है, उसने आपको स्यू कर दिया टू रिकवर दोज गुड्स की आपने चोरी करी है। इन रियलिटी यू वर वेरी इनोसेंट, आपको तो पता ही नहीं, यू थॉट कि जिससे मैंने रिंग ली है वो इंसान ट्रू ऑनर था, जबकि ट्रू ऑनर कोई और था एंड यू वर एक्टिंग इनोसेंटली। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जब ट्रू ऑनर आपको स्यू करेगा तो आपको लिटिगेशन एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, काउंसिल हायर करना पड़ेगा एंड इन अ वे और द अदर यू हैव टू डिफेंड योर केस। उस सब में आपका खर्चा होगा, तो वो जो एक्सपेंस आपका हुआ है यू आर लीगली एंटाइटल्ड दैट यू कैन क्लेम दैट द सेम एक्सपेंस फ्रॉम द बेलर, क्योंकि गलती किसकी थी, बेलर की थी, एंड बेलर इज ड्यूटी बाउंड टू कॉम्पेंसेट यू। तो सेक्शन 164 क्लियरली इतना ही बोलता है कि व्हेन बेली हैज सस्टेन्ड एनी लॉस और एनी इंजरी, he has sustained any kind of loss or injury only because the bailer was, he had a defective title, he was not legally entitled to make the contract of bailment or to receive those goods back or to give any directions respecting those goods. Despite that fact, he did all these things and Bailey has sustained some kind of injury, so he is legally entitled कि वो आपसे पैसा क्लेम कर सकता है। I hope आपको समझ आ चुका है सेक्शन 164। टॉकिंग अबाउट राइट टू लीन गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 70 बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू लीन, सबसे पहले लेट मी टेल यू कि राइट टू लीन हमेशा और हमेशा नॉन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ही लगेगा, यानी कि इन अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आप राइट टू लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में सेक्शन 158 एप्लीकेबल है, इसकी वर्डिंग क्लियर कट बताती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को ही अप्लाई करते हैं। और राइट टू लीन सेक्शन 170 क्लियरली बोलते हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, नॉन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट लगेगा। ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आप लीन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि गाइज अगेन जस्ट बिकॉज इट इज अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, आपको पता है ग्रेटिशियस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई लेन देन नहीं होता। आपको पता था कि आपने मेरी काऊ को संभाल के रखा है, ठीक है, आई एम दी ऑनर ऑफ अ काऊ और मैंने आपको दे रखी है। यू वर वेरी वेल अवेयर कि 1 महीने बाद मैं आऊँगी और मैं अपनी काऊ ले जाऊँगी। डिड यू जिस टाइम पे मैंने आपको अपनी काऊ दी थी, डिड यू एक्सपेक्ट कि मैं आपको कुछ पैसा दूंगी? नहीं, बिकॉज आपको पता है कि ये तो ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, जस्ट बिकॉज वी आर नेबर्स एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट आपने अपनी काऊ जो है वो मुझे दे दी, वो तो इट इज अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अदरवाइज यू कैन क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस इन्वोकिंग सेक्शन 158, बट एक तरीके से वो है तो एक ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में अंडरस्टूड है कि कोई लेन देन होगा ही नहीं, तो वहाँ पे जब एक्सपेक्टेड ही नहीं है तो मैं राइट टू लीन एक्सरसाइज कैसे कर लूँ? राइट टू लीन का मतलब होता है कि आई एम विद होल्डिंग और रिटेनिंग योर प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज माई डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम मनी इन रिटर्न एंड जस्ट बिकॉज आप मुझे वो पैसा नहीं दे रहे हो तो मैं आपकी प्रॉपर्टी को पकड़ के रखूंगी। दिस इज वॉट राइट टू लीन इज। सो राइट टू लीन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में तो कोई सेंस बनाता नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में राइट टू लीन एक्सरसाइज नहीं होता। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
नेसेसरी एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो इन्वोकिंग सेक्शन 158 इफ एनी, राइट। बट राइट टू लीन जो है वो एक्सरसाइज आप करते हो नॉन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। सो आई होप राइट टू लीन इज क्लियर। बट गाइज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो राइट टू लीन होता है इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीन। पर्टिकुलर राइट ऑफ लीन का मतलब होता है कि यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू रिटेन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर सपोज आई हैव गिवन अ सूट फैब्रिक टू यू फॉर स्टिचिंग, मैंने आपको दिया स्टिच करने के लिए, मैंने आपको उसका पैसा नहीं दिया एंड आई एम डिनाइंग कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगी, यू विल से जस्ट बिकॉज माई लेबर एंड माई स्किल माई टाइम हैज़ बीन इम्प्लाइड, मैंने कितनी लेबर कितना स्किल लगाया, आई हैव रेंडर्ड माई सर्विसेज टू यू एंड एज पर आवर कॉन्ट्रैक्ट आपको मुझे पैसा देना है। जब तक मैं आपको पैसा नहीं दूंगी यू हैव अ राइट कि आप उस पर्टिकुलर सूट को रिटेन करके रख सकते हो। सो पर्टिकुलर राइट ऑफ लीन का मतलब होता है कि वही पर्टिकुलर चीज़ को आप रिटेन करोगे विद रिस्पेक्ट टू विच चार्जेस आर ड्यू। चार्जेस उस सूट के विद रिस्पेक्ट ड्यू है ना, मैंने आपको सूट के लिए पैसा नहीं दिया तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के रख सकते हो। और इन सिंपल वर्ड्स जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर होता है आप उस चीज़ को रिटेन करके रख सकते हो। सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये नॉन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पे अप्लाई होता है। दूसरा ये पर्टिकुलर लीन होता है, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल लीन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर लीन। अब गाइस सेक्शन 170 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता है पर्टिकुलर लीन के, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि पर्टिकुलर लीन में क्या होता है, सम काइंड ऑफ सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड। ये जो आपका राइट टू लीन है ये आप तभी एक्सरसाइज कर पाओगे जब सर्टन एसेंशियल्स आर फुलफिल्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 170। और वो एसेंशियल्स क्या है उसको हम स्टडी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सम काइंड ऑफ सर्विसेज माइट हैव बीन रेंडर्ड। सबसे पहला सम काइंड ऑफ सर्विसेज माइट हैव बीन रेंडर्ड यूजिंग अ पर्सन्स लेबर और स्किल। गाइज अब जो भी पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगी आपने सिर्फ और सिर्फ टेलर की एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखना है एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड स्पोकन बाय मी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एसेंशियल फॉर अ बेली टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन इज दैट जो जिस चीज़ के विद रिगार्ड्स आपने राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया है उस चीज़ के ऊपर आपने कोई ना कोई सर्विसेज करी होनी चाहिए यूजिंग योर स्किल एंड योर लेबर। मैंने डेफिनेटली आई एम अ टेलर, आई हैव stitched a suit out of that fabric. It means some or the other services have been rendered by me using my labor, my skill, my time and my talent. So obviously I can retain it. Second important thing is that कि जो आपने right to lien exercise करना है, जो आपने services render करी है, it must be in accordance with the purpose of contract of bailment. अब मैंने आपको सूट स्टिच करने के लिए दिया था, आपने सूट को स्टिच कर दिया, आपने सूट को स्टिच कर दिया, यू आर अ टेलर, आपने उस सूट को स्टिच कर दिया। गाइस साथ के साथ आपने उसको ड्राई क्लीनिंग भी कर दी, टाइंग एंड डाइंग भी कर दी। अब जब मैं आपके पास आती हूँ एंड आई एम पेइंग यू फॉर दी स्टिचिंग ऑफ दैट सूट, यू आर आस्किंग मी कि मुझे आप टाइंग एंड डाइंग अलॉन्ग विद ड्राई क्लीनिंग के भी पैसे दो। आई कैन डिनाई। अब वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि आई एम एक्सरसाइजिंग राइट टू लीन, क्योंकि राइट टू लीन में इंपॉर्टेंट क्या है कि सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड। वो आपने कर दिया, आपने सूट बना दिया using your skill, your labor, your time, your talent, you have done that. But third important point is that जो आपने services पहले पार्ट पे rendered करी थी, it must be in accordance with the purpose of the bailment. पर्पस क्या था हमारे बेलमेंट का कि सूट को स्टिच करना है। सो इट मीन्स बाय ड्राई क्लीनिंग या टाइंग एंड डाइंग यू हैव डिविएटेड फ्रॉम दैट पर्पस ऑफ योर ओन, तो वो एक अनऑथराइज्ड यूज हो जाएगा। रिमेंबर अनऑथराइज्ड यूज, मैंने उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं दी थी। सिंस आई हैव नॉट ऑथराइज्ड यू, आई एम नॉट बाउंड टू पे यू फॉर दैट। अब मैं आपको पे करने के लिए बाउंड नहीं हूँ, इसीलिए यू आर नॉट इवन एंटाइटल्ड कि आप राइट टू लीन एक्सरसाइज करो। राइट टू लीन आप तब एक्सरसाइज कर सकते थे अगर मैं आपको सूट स्टिच करने का पैसा ना देती। सिंस यू हैव योरसेल्फ डिविएटेड, अपने आप से अपनी मर्जी से, सिंस यू हैव डिविएटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, तो उस चीज़ के लिए आप मुझसे पैसा क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है राइट टू लीन को एक्सरसाइज करने के लिए। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू मस्ट ट्राई यूजिंग योर स्किल, using your labor, you have to try and improvise the goods, you don't have to maintain it. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। अब देखो ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट में क्या होता है, मैंने अपनी काऊ अपने नेबर्स को दी, उन्होंने क्या किया, मेरी काऊ को सिर्फ मेंटेन किया 1 महीना। दे हैव मेंटेन्ड माई काऊ, उसको प्रॉपरली टाइम पे वो फीड करते रहे, उसको बेद कराई। इट मीन्स उनके जितने भी नेसेसरी एक्सपेंस हुए वो मुझसे क्लेम कर सकते हैं। एंड एज अ बेलर आई एम लीगली बाउंड बेसिकली टू मेक पेमेंट टू देम, तो वो उनके नेसेसरी एक्सपेंस हो गए। बट उन्होंने क्या मेरी काऊ में कोई इम्प्रोवाइजेशन करी थी, नहीं करी। दे हैव ओनली मेंटेन्ड माई काऊ फॉर अ मंथ, सिर्फ मेंटेनेंस करी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में हम राइट टू लीन एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि राइट टू लीन को एक्सरसाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि लीन आप तभी कर सकते हो व्हेन यू हैव इम्प्रोवाइज्ड अ पर्टिकुलर गुड।
यू डोंट हैव टू मेंटेन इट। ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में हम उसको मेंटेन करते हैं। अगर आप मेरी कार ले गए फॉर एग्जांपल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने मेरी कार को सर्विस करके नहीं मुझे दिया, रिपेयर करके आपने वापस नहीं करी, यू हैव नॉट इम्प्रोवाइज्ड इट, यू जस्ट हैव मेंटेन्ड इट, क्योंकि उसका डीजल खत्म हो गया आपने डलवा दिया। सो वो एक मेंटेनेंस होती है, वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं होती है। उसी तरीके से मेरी कार को आपने मेंटेन किया 1 महीना, लेकिन आपने उसको इम्प्रोवाइज नहीं किया, इसीलिए ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में राइट टू लीन एक्सरसाइज नहीं करते। बट गाइज इफ आई हैव गिवन माई सूट फैब्रिक टू यू, सो यू हैव इम्प्रोवाइज्ड इट, आपने उसको क्या किया, सूट में स्टिच कर दिया। अदरवाइज उस फैब्रिक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी जब तक आप उसको इम्प्रोवाइज ना करते। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन को एक्सरसाइज करने के लिए आई एम रिपीटिंग इट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेक्शन 170 के, वो ये है कि यू हैव टू रेंडर सम सर्विसेज using your skill or your labor. That skill or labor might have been used only and only in accordance with the specific purpose of the bailment. If you deviate it yourself, तो वो आपकी गलती है, you cannot claim that money from me. और अगर मैं मना करती हूँ तो आप right to lien exercise नहीं कर सकते। And fourth most important point is that your services which you have rendered must have improvised the goods bailed. You don't have to maintain it, you have to improvise it. अगर आप उसको improvise करोगे तभी आप right to lien exercise कर सकते हो। But guys, a point to be noted is that if there is any contract to the contrary, देन वही कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी फॉलो होगा और ये जनरल रूल फॉलो नहीं होगा। आई ऑलवेज से दैट अगर एक होता है जनरल रूल, अगर जनरल रूल से डिविएटेड स्टिपुलेशन लिखी है आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो वही फॉलो होगी। अगर एक ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी है तो उसी चीज़ को फॉलो किया जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सेक्शन 70 में कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी है, उसका मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी में फिर क्या लिखा होगा कि इन एनी वे आप अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते राइट ऑफ लीन। जनरल रूल क्या है कि बेली कैन हैव अ राइट ऑफ लीन ओवर द गुड्स बेल्ड अगर वो असेंशियल्स कंप्लीट है जो मैंने आपको बताए। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी होगा, इट मीन्स क्या है कि कम वॉट में जो बेली है ही कैन नॉट एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन। अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा वाइल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वाज एंटर्ड इनटू, सो कम वॉट में यू कैन नॉट एक्सरसाइज दिस राइट, क्योंकि इस सेक्शन में क्लियरली लिखा है कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अगर गलती से भी आपने कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी कर लिया, इट मीन्स यू हैव डिविएटेड फ्रॉम द जनरल रूल, तो वही कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी फॉलो होगा। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल इसकी इलस्ट्रेशन दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम अगैन अ टेलर एंड यू आर द अदर पर्सन। मैं एक टेलर हूँ और आप बेलर हो। आपने क्या किया, मुझे अपनी गुड्स पकड़ा दी, यू हैव बेल्ड योर गुड्स बैक टू मी, सॉरी हाँ यू आर अ बेलर सो यू हैव बेल्ड योर गुड्स टू मी। मैंने क्या किया, उसको स्टिच कर दिया और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि जैसे ही आपका सूट स्टिच हो जाएगा मैं आपको वापस कर दूंगी और आपको 3 मंथ्स का मैं टाइम पीरियड दूंगी। आई एम अ टेलर, मैं आपको 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दूंगी कि विद इन दोज 3 मंथ्स इन इंस्टॉलमेंट्स और एनी वे आप अपना पैसा मुझे लौटा देना। इट मीन्स इन अ वे और द अदर आई एम अ टेलर, आई एम अ बेली एंड आई हैव एक्सक्लूडेड और यू कैन से आई हैव ओमिटेड माई राइट टू लीन। हमने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जनरल रूल क्या है कि अगर आप मुझे पैसा नहीं दोगे, सपोज मैंने आपका फैब्रिक स्टिच कर दिया सूट में, जैसे ही मैंने वो किया आप उसको लेने आओगे, आपको देन एंड देयर मुझे पेमेंट करनी है एज अ जनरल रूल। अगर आप मना करोगे, I can exercise my right of lien over that particular suit, over that particular good bailed. But if there is a contract to the contrary, तो ये जनरल रूल फॉलो नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी किस तरीके से होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन दी कि हमने बिगिनिंग में ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जैसे आपका सूट स्टिच होगा मैं आपको डिलीवर कर दूंगी वो सूट एंड विद इन 3 मंथ्स आप मुझे पैसा लौटा देना। तो जब मैंने आपको सूट स्टिच किया और आई हैव कॉल्ड यू कि आपका सूट बन चुका है, तो वहाँ पे आई कैन नॉट एक्सरसाइज माई राइट ऑफ लीन सिंस इट हैज़ ऑलरेडी there's already a contract to the contrary which has been entered into between us at the time when this contract of bailment was entered into. I hope you are getting it. तो वो अब मुझे 3 months वेट करना होगा और आपके मनी आने का इधर इन इंस्टॉलमेंट्स और अदरवाइज मुझे वेट करना होगा सिंस आई हैव माई सेल्फ omitted कह लो और waived off my right to exercise this right of particular lien. I hope you are getting it guys. अब कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड डिस्कस करना चाहती हूँ। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइज कि वंस यू हैव पार्टेड विद द पोजेशन यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर राइट ऑफ लीन। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल है, आपने मुझे सूट दिया स्टिच करने के लिए, मैंने उस सूट को वापस कर दिया, आपने मुझे पेमेंट भी नहीं करी। इट्स स्किप्ड आउट ऑफ माई माइंड कि आपने मुझे पैसा नहीं दिया, मैं भूल गई। अब सिंस आई हैव डिलीवर्ड इट बैक टू यू, बाद में मुझे याद आता है कि मैंने आपको सूट तो स्टिच कर दिया बट आपकी पेमेंट मेरे पास नहीं आई।
अब यहाँ पे आई कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। सपोज आपने मुझे पैसा नहीं दिया और आपने एक और सूट मुझे भिजवा दिया आफ्टर अ वीक, और आप मुझे बोलते हो कि इसको भी स्टिच कर दो। अब मुझे याद आया कि आपने अपने प्रीवियस सूट की पेमेंट नहीं करी, सो आई हैव नो राइट टू एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन ओवर दिस कमोडिटी। सिंस आई हैव टोल्ड यू बिफोर हैंड कि यहाँ पे राइट ऑफ लीन एक पर्टिकुलर राइट ऑफ लीन है, इट मीन्स वही पर्टिकुलर कमोडिटी, वही पर्टिकुलर गुड के विद रिगार्ड्स, यानी कि विद रिगार्ड्स टू द गुड जिसके रिगार्ड्स चार्जेस आर ड्यू। चार्जेस किसके रिगार्ड्स ड्यू थे? जो पुराना सूट मैंने आपको दिया था। सिंस वंस आई हैव पार्टेड विद दैट पोजेशन, उस चीज़ का राइट ऑफ लीन में किसी और कमोडिटी पे, किसी और गुड पे एक्सरसाइज नहीं कर सकती। इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट वंस आई हैव पार्टेड, और फॉर दैट मैटर बेली, वंस बेली हैज पार्टेड विथ द पोजेशन ऑफ बेलर्स गुड्स, ठीक है, ही कैन नॉट एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन ऑल ओवर अगैन, राइट। सपोज मैंने आपको वापस से सूट दे दिया, तो वो जो नया सूट है वो पर्टिकुलर नहीं हुआ ना, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगी जनरल लीन की। हम यहाँ पे जनरल लीन की बात नहीं करते, तो वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर लीन। सो वही पर्टिकुलर उसी कमोडिटी को, उसी गुड को आप अपने पास रख सकते हो विद रिगार्ड्स रिगार्ड्स ऑफ विच चार्जेस आर ड्यू। तो क्योंकि वंस यू हैव पार्टेड विद इट, वो आपकी गलती थी, यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग। आई होप यू आर गेटिंग इट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू राइट ऑफ लीन इज दैट व्हाट हैपन्स इज समटाइम्स हम राइट ऑफ लीन थर्ड पार्टी भी एक्सरसाइज कर सकती है। राइट ऑफ लीन बाय थर्ड पार्टी, गाइस यहाँ पे थर्ड पार्टी इज नोबडी बट अ सब बेली। सब बेली का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। सब बेली इज नॉट डिफिकल्ट। सब बेली इज द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट्स आई एम अ बेली, आई हैव बेल्ड इट टू यू। तो क्या हो गया, दो बेलीज हो गए एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में, वो सब बेलमेंट होती है। गाइस व्हाट हैपेंस इज कई बार क्या होता है, ईदर बाय द कस्टम यूजेज ऑफ द ट्रेड, कई बार क्या होता है कि ट्रेड ऐसा होता है उसका कस्टम या उसका यूजेज होता है कि सब बेलमेंट करनी पड़ेगी, या फिर एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट में। इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ होती है तो सब कॉन्ट्रैक्ट, सब बेसिकली बेलमेंट ऑफ सब बेली, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सब बेली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो वहाँ पे भी क्या होगा, आई विल बी गिविंग यू एन इलस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको सूट ले लिया स्टिच करने के लिए, बट आई नो कि इस सूट पे एम्ब्रॉयडरी भी करनी है, बट वो एम्ब्रॉयडरी का काम मेरा नहीं है। आई नो दैट यू आर अ बेलर, यू हैव बेल्ड इट टू मी, मैं कौन हुई, बेलर नंबर 1, बट मुझे पता है कि आई कैन ओनली स्टिच इट, एम्ब्रॉयडरी का काम मेरा नहीं है, आई हैव टू बेल इट टू समबडी एल्स, मुझे उसको बेल करना होगा, वो अपना काम पूरा करेगा, फिर वो मुझे सूट देगा, आई विल स्टिच इट एंड देन आई विल गिव इट बैक टू यू। इट मीन्स यहाँ पे 3 people आर इन्वॉल्व इन वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बेलर हो, आई एम बेली 1 एंड ही इज बेली 2, ऑल्सो कॉल्ड सब बेली, उसको हम बोलते हैं सब बेली। सो गाइस बहुत बार क्या होता है कि या तो हमारे बीच अग्रीमेंट हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपका सूट जो है वो पहले मेरे पास नहीं, पहले किसी और के पास जाएगा, वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क होगा, वो मुझे देगा एंड देन आई विल गिव इट बैक टू यू। सो इट वॉज एन अग्रीमेंट, इट वॉज बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सब बेलमेंट वॉज एंटर्ड इनटू। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कोई काम इसी तरीके से होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये काम होता है इस तरीके से कि इसमें सब बेलमेंट होती है, कि ये काम हमारा नहीं है, वो हमें करके देंगे, फिर हम करेंगे और फिर हम आपको देंगे। समटाइम्स इट इज़ दी ट्रेड, इट इज़ द कस्टम और द यूजेज ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड कि ये काम ऐसे ही होगा, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सब बेलमेंट होता है। अब गाइज यहाँ पे मैं समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि अब जो वो थर्ड पर्सन है, बेली नंबर 2 और फॉर दैट मैटर थर्ड पर्सन सब बेली जो है, अगर सपोज उसने एम्ब्रॉयडरी करी, अब उसको पैसा नहीं दिया, ही कैन इवन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन बोथ अगेंस्ट मी एंड अगेंस्ट यू बीइंग द ट्रू ऑनर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि लीन कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज्ड बाय अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इज नोबडी बट अ सब बेली। तो सब बेली होता है वो थर्ड पर्सन होता है और वो भी राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है, बट अगेन पर्टिकुलर लीन ही एक्सरसाइज करेगा। अगर आपको ही हैज़ एम्ब्रॉयडर्ड इट, एम्ब्रॉयडरी के लिए उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन ओवर दैट पर्टिकुलर सूट बोथ अगेंस्ट मी बेली एंड अगेंस्ट बेलर। आई होप यू गेटिंग इट कि यहाँ पे जो लीन होती है, पर्टिकुलर लीन होती है, वो सब बेली भी एक्सरसाइज कर सकता है। सो दीज वर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिलेटिंग टू राइट ऑफ लीन। यहाँ पे मैंने आपको इन द नटशेल सब बेली का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट यू हैव अ राइट टू स्यू द रॉन्ग डूअर। अब गाइस यहाँ पे सेक्शन 180 एंड 181 को हम डिस्कस करते हैं। आई विल बी गिविंग एन इलस्ट्रेशन इसको समझाने के लिए। यू हैव अ राइट टू स्यू अ रॉन्ग डूअर। व्हाट हैपेंस इज सपोज आई हैव गिवन माई कोट टू यू फॉर ड्राई क्लीनिंग, आई हैव गिवन माई कोट टू यू फॉर ड्राई क्लीनिंग। अब आपके यहाँ से इवन आपको भी नहीं पता, somebody had stolen it, somebody had stolen it. It means that third person has somebody who has wrongfully deprived me or you of that property.
ठीक है। अब वो चीज़ आपके पास थी, आप कौन थे? बेली। वो प्रॉपर्टी मेरी थी, वो कोट मेरा था, मैंने आपको ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया, आप बेली बन गए। अब आपके यहाँ से वो सूट किसी ने क्या कर लिया? कोट बेसिकली स्टील कर लिया। इट मीन्स वो जो थर्ड पर्सन है, ही इज़ अ थीफ एंड ही हैज़ डन समथिंग इन अ रॉन्गफुल मैनर ऑफ विच इवन यू आर नॉट अवेयर। वहाँ पे आपकी गलती नहीं है, आपको भी उस चीज़ का नहीं पता था। इट मीन्स आप बेली हो, तो सेक्शन 180 क्लियरली बोलता है कि बेली हैज़ अ राइट टू स्यू द रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर इज नोबडी बट थर्ड पर्सन ऑब्वियसली। सो यू आर अ बेली, you are a dry cleaner, you are a bailey of my goods. So what happens is some third person, यानी कि that thief, sometimes third person deprives you of your possession of goods, use or possession of goods, ठीक है ना। यानी कि आपके पास मेरा कोट था, he has deprived, by stealing that coat of mine, he has deprived you of use and possession of that particular good. अगर आपको उस चीज़ से कोई भी लॉस या डैमेज होगा, you have a right to sue the wrongdoer. तो सेक्शन 180 सिर्फ यही बोलता है कि नॉट ओनली द बेली बट बेलर ऑल्सो, मैं भी उसको स्यू कर सकती हूँ। जब हम राइट्स ऑफ बेलर डिस्कस करेंगे ना, वहाँ पे भी हम सेक्शन 180 एंड 181 डिस्कस करेंगे। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। वही होता है कि बोथ द बेलर एंड द बेली हैव अ राइट jointly or individually, either me or you or both of us jointly can sue the wrongdoer if that person has deprived you, Bailey. अगर आपसे चोरी किया, इट मीन्स वो मेरी भी तो चीज़ थी ना, अल्टीमेटली वो चीज़ तो मेरी थी जो चोरी हो गई। इट मीन्स इवन you and me, both of us can exercise this right to sue the wrongdoer. तो सेक्शन 180 क्लियरली बोलता है कि either of them, either the bailey or the bailor or both of them jointly can sue the wrongdoer, यानी कि thief or any third person in this example, if that person has wrongfully, गलत तरीके से deprived you or me of use or possession of those goods, and as a result of which we people have suffered some kind of damage, injury or any kind of loss. I hope guys I'm clear on this point. Section 181 इतना ही बोलते हैं कि जो आपको compensation मिलेगी, since I am I have a legal right to sue the wrongdoer. After suing him, कोई तो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन मुझे मिलेगी। तो जो रिलीफ हमें मिलेगा, जो कॉम्पनसेशन या जो डैमेजेस हमें मिलेंगे, वी पीपल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 181 हैज़ टू अपॉर्शन इट आउट। हमें शेयरिंग आउट करनी होगी अकॉर्डिंग टू आवर रिस्पेक्टिव शेयर्स। अब अगर सपोज मेरा कोर्ट कोई चोरी करके ले जाता है, आपको मैं आपके लॉफुल चार्जेस दूंगी, ड्राई क्लीनर के जो भी लॉफुल चार्जेस होंगे, आउट ऑफ दैट मनी, आउट ऑफ दैट कॉम्पनसेशन मैं आपको भी दूंगी और बाकी का रिमेनिंग मैं अपने पास रख लूँगी। आई होप यू गेटिंग इट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट राइट होता है कि यू हैव अ राइट टू स्यू द रॉन्ग डूअर, एनी थर्ड पर्सन, एनी थीफ इन दिस एग्जाम्पल, यू हैव अ राइट टू स्यू दैट पर्सन इफ दैट पर्सन इज wrongfully deprived you of use or possession of the goods bailed, as a result of which you have suffered some kind of loss or damage. Guys, I hope I'm clear. But guys, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्वेश्चन आपके माइंड में शायद से आए कि हाउ कम बेली इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज दिस राइट। बेलर का तो समझ आता है कि ही इज द ट्रू ऑनर, पर बेली क्यों कर सकता है? सो गाइज द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट बेली इज बेली फॉर द बेलर। आर यू जस्ट गेटिंग इट? बेली इज बेली फॉर द बेलर, बट ही इज द ट्रू ऑनर इफ आई टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बेली होता है उसका टाइटल एक सीढ़ी डाउन है, वन स्टेयर डाउन इफ आई कंपेयर इट विद द ट्रू ऑनर। ऑनरशिप इज द बेस्ट टाइटल आई हैव टोल्ड यू बिफोर हैंड। यही इन्हीं आई थिंक बेलमेंट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था। येस, इन दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ दैट ऑनरशिप इज द बेस्ट टाइटल। ऑनरशिप इज द बेस्ट टाइटल जो किसके पास होता है? बेलर के पास। सो इसका टाइटल तो क्या होगा? बेस्ट टाइटल होगा। बट जो बेली होता है, ही इज वन स्टेयर डाउन, he is bailey for the bailor, but for the rest of the world below him, he is the true owner. So अगर आपने इसको भी wrongfully you have deprived this person of use and possession of certain goods bailed, so he can sue the wrongdoer as if he is the true owner. I hope you're getting it कि किस तरीके से होता है। Here we talk about betterment, here we talk about titles basically. I hope I've made myself clear. So these were the only rights of the Bailey. I hope guys all these rights are very much clear to you. Still, if you have any doubts, any queries related to this concept, please feel free to comment in the comment box. I'll be very happy to reply to all your doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.